Hello dear students. In the previous video, we had studied about friction, types of friction, that is static and kinetic. In static friction, we have one more type of friction that is called limiting friction, which is the maximum value of static friction. After that, we had studied that how to apply the formula for static friction, kinetic friction. In that video, we had also studied about angle of repose and angle of friction. Today, we are going to study that pulling or pushing. There are two kind of factors, pulling and pushing. We'll come to know that which one will be easier. Pulling is easier or pushing is easier. After that, we'll see the centripetal force. What is centripetal force? And thereafter, we'll see the motion of the car on a level road and on a banked road. So here is our first topic, that is which is easier, pulling or pushing a body. First of all, I just want to tell you that now in our free body diagram we'll have one more force, that is frictional force, if it is mentioned in the question that friction is available between the contact surface of the two body. And we also know that friction always acts in the opposite direction of the force applied. And the most important thing is friction depends upon the normal reaction, as friction is directly proportional to normal reaction. This is frictional force, and the formula for friction is mu into n. Now, in laws of motion, we have solved so many problems related to connected motion, and in those problems we were not having any kind of role of normal reaction. But now we have to assume the normal reaction also, because normal reaction is only helpful to find the frictional force. So suppose here is one body of mass m, and I am pulling this body with a force F. There is another case in which I am pushing this body. This is pushing at certain angle. Suppose here we have angle theta with it. So it will have two component, that is F cos theta will be here, and in the upward direction we'll have F sin theta, right? Here mg will be acting in the downward direction, and in the upward direction we'll have normal reaction. And there will be a frictional force which is acting in the opposite direction, because your applied force is in the right direction. So here you'll get a frictional force. Now, to find the frictional force, I need to find the normal reaction. So if I'll find the normal reaction over here, what I have to do is upward force must be equal to the downward force. That is the only reason why this block is staying in contact with the surface. If upward force is greater, that means the body will move in the air, and if downward force is greater, that means the body will be inside the ground. So in this case, what you are going to do is n plus F sin theta is the force which is acting, and this must be equal to mg. So here normal reaction is mg minus F sin theta, right? In this case, if I'll find the normal reaction, so how I can find the normal reaction? See, this angle is theta. So here this is a vector. So if I'll draw a parallelogram law, that means two component must break in this direction. So here I'll get F, this force is F. Here I'll get this angle is theta, that means this angle is also theta. So here I'll get F cos theta, and in the downward direction I'll get F sin theta, right? Mg will be acting in the downward direction, and normal reaction will be in the upward direction. Again, I have to apply upward force must be equal to downward force. So N will be equal to F sin theta plus mg. सपोज इसको हमने n1 नाम दे दिया और इसको हमने n2 नाम दे दिया. And we know that frictional force is basically equal to mu into n.
So if I'm finding the frictional force over here, so I have to write F1 is equal to mu N1. So mu into mg minus F sine theta. This will be the frictional force which is acting on this block. And in this case, if I need to find the frictional force, in this case, mu into F sine theta plus mg. As we can see that F2 is greater than F1, that means frictional force in case of pushing, frictional force in case of pushing is greater than frictional force in case of pulling, right? तो जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा. तो पुशिंग में के पास ज्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स, दैट मींस पुलिंग इज easier than pushing. So this is the concept behind how to find which one is easier. We need to find the normal reaction because frictional force depends upon the normal reaction. Once you are able to find the normal reaction, then you can find the frictional force by multiplying the normal reaction by mu, and we come to know that frictional force in pushing is greater than friction force in pulling. मतलब किसी भी बॉडी को पुल करना आसान है पुश करने से. तो ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा बेटा, वाई पुलिंग इज easier than pushing, yeah, why pushing is harder than pulling, yeah, which is easier, pulling or pushing. In that case you have to show mathematically in such a manner कि भैया pulling is easier than pushing, right? Now our next concept is centripetal force. What is centripetal force? It is a force that is required to move a body along a circular path with constant speed. मतलब अगर कोई भी बॉडी हमारे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी बॉडी मूव करेगी, सपोज दिस इज अ कार और ये मूव कर रही है बेटा, तो ये हर टाइम पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है. इट इज चेंजिंग डायरेक्शन एट एवरी मोमेंट. सो अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर भी फोर्स लगती है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? तो अगर कोई भी बॉडी मेरी एक सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रही होगी, तो इन दैट केस व्हाट आई हैव टू सी इज कि अगर यहाँ पर है कोई भी बॉडी तो ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, यहाँ पर है इसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी. वेलोसिटी जो भी आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन बेटा वेलोसिटी तो चेंज कर रही है हर बार, है कि नहीं? बिकॉज हर बार आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. और अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, इन दैट केस यू विल फाइंड अ फोर्स एक्टिंग इन द इनवर्ट डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में? इनवर्ट डायरेक्शन में. और इसी इनवर्ट डायरेक्शन की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसी इनवर्ट डायरेक्शन की फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, मतलब एफसी नाम दे देंगे उसको. तो एक और इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली कि सेंट्रीपिटल फोर्स always acts in the रेडियल डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में लगेगी? हमेशा रेडियल डायरेक्शन में लगेगी. तो एक और फोर्स आ गई. देखो बेटा अभी तक हमारे पास सिर्फ फोर्स F इज इक्वल टू ma हुआ करती थी, उसके बाद हमने एक और नई तरीके की फोर्स पढ़ी, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. एक हमने नॉर्मल फोर्स भी पढ़ी जो कॉन्टैक्ट की वजह से लगती है. नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स दोनों ही आपकी कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं. एक और नई तरीके की फोर्स आ गई कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, in that case also you will find a centripetal force acting on it. So the formula for centripetal force will be Fc will be equal to m into सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक कंसेप्ट पढ़ा था बेटा हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में. तो वहां पर हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट वाज v स्क्वायर बाई आर, वेयर r इज द रेडियस एंड v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक एक्सप्रेशन अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? m v स्क्वायर अपॉन r. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होगी जब कभी भी आपकी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होगी. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है
कि जब कभी भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है, वी ऑलवेज फाइंड अ फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब हमारी बॉडी का जो बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है, हमें फील हो रही होती है। तो जब कभी भी हम न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे तो हम वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। कैसी फोर्स लगाएंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर बात करेंगे, हम सेंट्रीपिटल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। हम जब कभी भी सर्कुलर मोशन को डील करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात होगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r होता है। यानी कि आपको जब कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आपको दिखानी होगी तो सिंपल सी बात, आप हमेशा उसको सर्कुलर मोशन के आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे और इसका मैग्नीट्यूड भी mv²/r ही होगा। कितना होगा? mv²/r। आपसे कोई पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स इन द इनवर्ट डायरेक्शन। बट आप जब न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे तो आपको खुद पता है कि इन द रियलिस्टिक सिचुएशन आपको क्या फील हो रही होती है कि आपकी बॉडी आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रेडियस के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही होती है। तो न्यूमेरिकल्स को डील करते टाइम पे विल बी यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक इमेजिनरी फोर्स है जो हमें हमारी दिख रही होती है हमें। तो न्यूमेरिकल्स को डील करते टाइम पर आप जब कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स को दिखाएंगे तो हमेशा उसको आप आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो आई होप ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स को आप कभी भी इनवर्ट डायरेक्शन में न्यूमेरिकल्स को डील करते टाइम पर नहीं दिखाएंगे, आप हमेशा उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में ही दिखाएंगे। अब इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की और जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको ज़रा हम लोग सर्कुलर मोशन में डील करने की कोशिश करते हैं कि जब कभी भी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगी, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे एक्सर्ट होगी। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जब कभी भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तभी हम उस बॉडी को फील कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड मीन्स, सबसे पहली चीज कि जो भी आपकी रोड है बेटा, वो रोड चाहे ये इनवर्ट, मतलब ये इसकी रेडियस होगी सपोज इस सर्कुलर ट्रैक की, हम इसकी मीन रेडियस को अज्यूम कर रहे हैं r। तो एक इनर साइड होती है, एक आउटर साइड होती है। वहां पर जो भी रोड मेरी बनी हुई हो वो बिल्कुल लेवल में हो। किसमें हो बेटा? लेवल में, मतलब स्लैंट ना हो। अगर स्लैंट होगी तो उसको हम बोलते हैं बैंक्ड रोड। दैट विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो भी अगला टॉपिक है अपना, दैट इज अबाउट द बैंक रोड। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने क्या काम किया बेटा, मैंने यहाँ पर एक कार प्लेस कर दी। 2D में कार बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो हमने क्या काम किया, हम कार को कुछ इस तरीके से शो कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बैक साइड से अगर मैं कार को देखूंगा तो कार मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होती है। इस कार का मास सपोज मैंने m मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है mg तो ग्राउंड पर लग रहा होगा बेटा, बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ध्यान से समझिएगा इसको। ऊपर की डायरेक्शन में ये जो भी 4 टायर हैं, हर टायर से आपको एक ना एक रिएक्शन मिल रहा होगा, R1 R2 R3 R4 इस तरीके के रिएक्शन मिल रहे होंगे, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे n से। दिस n इज बेसिकली, व्हाट इज n? n इज द रिएक्शन ड्यू टू all the tires in contact। ठीक बात हो गई। अब जब कभी भी कोई भी गाड़ी टर्न लेती है बेटा, तो आपने देखा होगा गाड़ी जो स्किड कर रही होती है, जहां कहीं पर भी टर्न लेते हैं वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड होती हुई जाती है। तो जब कभी भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड इज, यू आर गोइंग टू फाइंड अ फ्रिक्शनल फोर्स जो कि आपकी इनवर्ट डायरेक्शन में लग रही होगी। दिस इज F। और ये फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर बैकवर्ड नहीं लगती है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स आपकी टेंजेंशियल लगेगी। कैसी लगेगी? टेंजेंशियल। तो और वो भी किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स दी रेडियस लगेगी। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, हम इजीली टर्न ले पाते हैं। अदरवाइज अगर ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो कार विल स्किड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्किड। बिकॉज आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी? इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी। और वो वैल्यू कितनी होगी आपकी? mv²/r। दिस विल बी योर वैल्यू, राइट। अब हमें ये पता करना है कि जो भी ये कार है, ये कार हमारी कब स्किड होगी, कब स्किड नहीं होगी।
तो उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, ज़रा ध्यान से समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक कार है जो बैलेंस्ड है, तो ऑब्वियसली बात है रोड पर बड़े सेफली चल रही है, कार इज मूविंग सेफली, कार इज मूविंग सेफली। तो उसकी क्या कंडीशन होगी? सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स से बड़ी हो या फिर बराबर हो, तो कार आपकी सेफली मूव करेगी। बट इफ फ्रिक्शनल फोर्स छोटी हो जाए, स्मॉलर देन mv² अपॉन आर, देन द कार विल स्किड। कार आपकी क्या करने लगती है? स्किड करने लगेगी, बाहर की तरफ मूव करने लगेगी। तो हम पहले फाइंड करते हैं कि जो भी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को देखूं बेटा, तो एन जो है वो मुझे किसके बराबर मिल रहा है? mg के बराबर। एन निकालना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है। तो अगर n इज इक्वल टू mg हो गया, इट मीन्स जो भी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू इंटू एन हो जाएगी। और अगर ये म्यू इंटू एन हो गई, तो म्यू इंटू एन का मतलब क्या हो गया? mg। अब कार को सेफली मूव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कौन सी कंडीशन देखनी पड़ेगी? फ्रिक्शनल फोर्स वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इवल नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स इज हेल्पफुल फॉर द मोशन ऑफ द कार इन अ पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या कंडीशन लगा पाएंगे? हम यहाँ पर कंडीशन लगा पाएंगे कि एफ जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे? mv² अपॉन आर से। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो F की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? F की जगह पर ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स है, mg दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv² अपॉन आर। ये v वेलोसिटी से ही हमारी कार मूव कर रही है बेटा, और r इसकी रेडियस है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये इसकी रेडियस है r। तो m से m क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। तो v² की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। तो v मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन म्यू आर जी। तो अगर आप किसी भी कार को इस पर्टिकुलर रेंज में चलाएंगे, किस पर्टिकुलर रेंज में? म्यू आर जी, रूट म्यू आर जी की रेंज में चलाएंगे, तो वो कार आपकी सेफ रहेगी। अब यहीं पर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी टू टेक अ टर्न। तो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में देखो, स्पीड कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बराबर हो जाएगी तो वही यहाँ पर आपको मैक्सिमम कंडीशन मिल रही है। सो मैक्सिमम स्पीड बाय विच वी कैन टेक टर्न will be v is equal to रूट अंडर म्यू आर जी। तो आपने देखा भी होगा बेटा, रोड्स पर लिखा होता है फॉर सेफ टर्निंग स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर। वो इसी फॉर्मूले से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी रोड पर अगर टर्न है तो टर्न लेते टाइम पर आप मैक्सिमम कितनी स्पीड रख सकते हैं फॉर सेफ टर्न। ठीक है, वी कैन टेक टर्न सेफली, वी कैन टेक टर्न सेफली। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी हो गई तो ऑब्वियसली बात है ये अपने ट्रैक से क्या कर जाएगा बेटा? स्किड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ये स्किड कर जाएगी। अगर इस वेलोसिटी से आप ज़्यादा वेलोसिटी से किसी भी पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में अगर आप मूव करने की कोशिश करेंगे, तो दिस इज दी सेफ स्पीड। ये सेफ स्पीड लिमिट है कि v की वैल्यू जो होनी चाहिए आपकी वो लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी होनी चाहिए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझ में आई है बेटा कि फ्रिक्शनल फोर्स वाइल टेकिंग अ टर्न, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिखूं, वाइल द कार और बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर ट्रैक, इन अ सर्कुलर ट्रैक देन फ्रिक्शन acts towards the center of circular path।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सेंट्रीपिटल फोर्स तो देखो हमने किस डायरेक्शन में अप्लाई की है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। आप सेंट्रीपिटल भी बोलेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है बेटा, बिकॉज हमें जो फोर्स फील होती है दैट वी फील इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम इस फोर्स को आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहे होते हैं। तो ये दो बातें हमें समझ में आई। तो ये लेवल रोड थी, मतलब जो भी इनर एंड है और आउटर एंड है रोड का वो बिल्कुल लेवल में था। अब हम जो दूसरी बात करेंगे बेटा वो है, आप हाईवेज वगैरह पर कभी भी मूव करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो भी आपकी रोड होती है वो थोड़ी स्लैंट दिखाई देती है। मतलब जो भी उसकी इनर रेडियस है, इनर साइड है, वो थोड़ी दबी हुई होती है और आउटर साइड थोड़ी उठी हुई होती है। देयर आर सेवरल रीजन फॉर सच काइंड ऑफ रोड। सबसे पहली बात, बारिश होती है तो सारा का सारा पानी आपकी उस रोड पर नहीं रुकता है। अगर लेवल रोड होगी तो वो रोड पर ही रुका रहेगा, तो रोड को डैमेज कर देगा। बैंक्ड रोड में ये यहाँ पर हमें बहुत हेल्पफुल होता है वाइल टेकिंग अ टर्न, इसलिए हम लोग हमेशा बैंक्ड रोड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड, तो बैंक्ड रोड कैसी होगी देखते हैं। ये एक रोड है और ये रोड जो है ये लेवल नहीं है, इस बार एक पर्टिकुलर टर्न है थीटा का, मतलब ये आउटर वाला जो पोर्शन है ये लिफ्टेड है एंड दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड। तो आपसे अगर कभी भी कोई पूछे व्हाट डू वी मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड, द आउटर साइड ऑफ द रोड इज tilted from its horizontal level and the inner side is remain at the horizontal level, तो जो आपको inclination मिलता है that is called banking of road। तो अगर मैं यहाँ पर अब इस तरीके की रोड पर जो आप टर्न लेते टाइम पर, अब आपको हर जगह पर रोड कैसी मिलेगी, इसी तरीके से इंक्लाइंड मिलेगी। और इसी इंक्लाइंड रोड पर अगर आप टर्न लेने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो कार बना लें अपनी। ऐसी कार है ये जो कि बिक भी नहीं सकती। तो हम यहाँ पर क्या करें, ये हमने एक रोड बना ली, एक कार बना ली। इस कार के पास कुछ ना कुछ मास होगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, तो mg लगेगा बेटा। यहाँ पर इस mg के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका mg cos थीटा जो कि बिल्कुल इसके नॉर्मल होगा आपकी साइड के, ये एंगल भी आपका थीटा हुआ करता है। और एक जो आपको फोर्स दिखाई देगी वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगी, और वो फोर्स कितनी दिखाई देगी आपको, mg sin थीटा, राइट। एक नॉर्मल रिएक्शन दिखाई देगा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है बेटा, परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर नॉर्मल बना रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल बनाने की कोशिश करूँ तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी अ नॉर्मल, ठीक। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो बिल्कुल आउटवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी। किस डायरेक्शन में लगेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गई मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी जो इस सरफेस के टेंजेंशियल होगी और हमेशा रेडियस की तरफ लग रही होगी बेटा, मतलब ये हमारी एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। अगर ये हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है दिस फ्रिक्शनल फोर्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट आपका इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट आपका नीचे की डायरेक्शन में आएगा। यानी कि इस साइड में जो भी आपका कंपोनेंट आएगा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में क्या मिलेगा, एफ साइन थीटा। आप नॉर्मल रिएक्शन को भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को अगर मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं तो कैसे कंपोनेंट्स बनेंगे देखिएगा। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन को हमें डिवाइड करना है। तो नॉर्मल रिएक्शन को अगर मुझे डिवाइड करना है तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे डिवाइड कर पाएंगे, देखते हैं कैसे डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है मेरा। तो नॉर्मल रिएक्शन को अगर मुझे डिवाइड करना है तो देखो एक बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और वो कितना लगेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो हमारा कौन सा एंगल थीटा होगा, क्या ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा, बिल्कुल ये एंगल हमारा थीटा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर n
cos थीटा मिल जाएगा बेटा, और इस डायरेक्शन में हमें n sin थीटा मिल जाएगा, है क्या नहीं? तो सिंपल सी बात ये कि हमने बहुत सारे जो भी हमारी फोर्सेस थी उन सबके कंपोनेंट्स भी बना लिए। क्यों बना रहे हैं ये कंपोनेंट? बेटा कोई भी चीज़ लेवल रोड पर कब तक काम करेगी? जब तक उसका mg बैलेंस रहे और ये सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस रहे, तो वो सेफली चलते रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और यहाँ पर अगर हम अपवर्ड फोर्स की बात करें तो अपवर्ड फोर्स कौन सी है बेटा? यही वाली फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जैक्टली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन यही वाली फोर्स लग रही है, तभी तो ये mg हमारा बैलेंस्ड है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये mv स्क्वायर अपॉन r है, और यहाँ पर जो हमारी लगने वाली जो दो फोर्सेज हैं वो ये दोनों फोर्स हैं जो कि mv स्क्वायर अपॉन r को बैलेंस कर रही हैं। इक्वेशन बना लेते हैं भैया। तो इक्वेशन अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो देखो क्या बन जाएगी, n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, यही बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो f जो है वो f हमारा किसके बराबर होता है? f हमारा म्यू इंटू एन के बराबर होता है, ऐसे ही होता है। तो उसको हम लोग देख लेंगे अभी। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड इक्वेशन विल बी n sin थीटा प्लस f cos थीटा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होगा। तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? मैं फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर म्यू इंटू एन लिख सकता हूँ, क्योंकि यही हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है बेटा। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में देखूँ ध्यान से, तो इस वाली टर्म को इधर लेकर आता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, म्यू इंटू एन। नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर, कैसा साइन होगा? नेगेटिव साइन। तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन प्लेस कर दूँ तो दिस विल बी म्यू इंटू एन साइन थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम जी होगा। यहाँ पर ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है हमारी एन साइन थीटा वाली, इसमें भी आप फ्रिक्शनल फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसा ही रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। जब आपको ऐसा रिलेशन देखने को मिला है तो दिस इज योर इक्वेशन, जो भी आपकी फर्स्ट थी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। दोनों को ज़रा डिवाइड कर दो। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखो n से n हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, m से m कैंसिल हो गया, ऊपर चला जाएगा आर जी और नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से वी स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करूँगा तो वी स्क्वायर देखो क्या मिल जाएगा मुझे, आर जी, और ऊपर आ जाएगा ये साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, मैंने इसको कॉस थीटा से डिवाइड किया तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। ऐसा क्यों मिला? बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने ये डिवाइड किया तो मुझे ये रिलेशन देखने को मिला। तो v की जो वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ से, v विल बी इक्वल टू रूट अंडर आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, वन माइनस म्यू टेन थीटा। सो दिस इज द वेलोसिटी बाय विच हम क्या काम कर सकते हैं, हम बैंक्ड रोड पर कार को सही स्पीड से चला सकते हैं ताकि वो हमारी स्किड ना करे। आई होप ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। तो आज के लिए इतनी कहानी बहुत है। रेस्ट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। स्टडी पढ़ाई करते रहिए बेटा। स्टे फिट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।